So we were seeing Romans chapter 11 last week. तो हम रोमियो के 11वें अध्याय को पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे. So Paul was asking the question whether God has rejected his people Israel. जहां पर प्रेरित पौलुस यह एक प्रश्न पूछ रहा था कि क्या परमेश्वर ने अपने ही साम्राज्य में इजराइल को ठुकरा दिया है. He's telling that for a time he has given them the spirit of sleep and he has blinded their eyes for a time being. और पौलुस यह बोल रहा था कि कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उनको एक नींद दे दी है और उनकी आंखों के सामने एक पर्दा कर दिया है. But there's going to be a time when they are going to turn to Jesus Christ. परंतु एक समय आएगा जब वो लोग यीशु मसीह की ओर फिर जाएंगे. We can see in verse 16, if the first piece of dough is holy, the lump is also, and if the root be holy, the branches are too. तो 16. तो हम 16वें वचन में देखते हैं, जब भेंट का पहला पेड़ पवित्र ठहरा तो पूरा गंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं. So we can see that the nation of Israel was set apart for God. तो हम देखते हैं कि जो इजराइल है, उस इजराइल देश परमेश्वर के लिए पवित्र अलग ठहराया गया है. And even the people of Israel today are set apart for his final purposes. और आज के दिन तक भी जो इजराइल के लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के जो अंतिम बुलाहट है उसके लिए अलग ठहराए हुए हैं. The word holy means set apart for God. और जो शब्द पवित्र है उसका मतलब है कि परमेश्वर के लिए अलग ठहराए जाना. In verse 17 we see, if some of the branches were broken off and you being a wild olive were grafted in among them and became partakers with them of the rich root of the olive tree. 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है. See, this is what happened. We were a wild olive tree and God has grafted us into that olive tree which is Israel. तो यही हमारे जीवन में भी हुआ है कि हम लोग तो जंगलों में रह रहे थे और अपने ही हिसाब से जी रहे थे, परंतु परमेश्वर ने हमें अपने साम्राज्य में अपने देश इजराइल का एक हिस्सा बनाया है. We can see here that we have become partakers of the rich root of that olive tree. That means the Old Testament, Israel's forefather, Abraham, all have become ours. तो हम देख सकते हैं कि हम भी परमेश्वर के बुलाने के द्वारा उस परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा बन गए हैं. ब्रदर, कैन यू रिपीट द लेटर पार्ट? Israel's forefather Abraham has become ours also. The promise of God in the Old Testament have become ours. जो इजराइल के जो परम पिता हैं, जो इब्राहिम हैं, वो हमारे पिता भी ठहरे हैं, और हम भी उनके वंशज हैं. We know that Jesus Christ has come for the people of Israel initially, but Jesus Christ has become ours. तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह इजराइल के देश के लिए आए थे, परंतु अभी यीशु मसीह हमारे भी हैं. So we have been grafted into that tree of God. और हम उस वृक्ष का एक हिस्सा बन गए हैं. Verse 18 we can see, do not be arrogant towards the branches, but if you are arrogant, remember that it is not you who support the root, but the root supports you. तो 18वां वचन कहता है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है. We can see that the word arrogant, pride comes so many times in these portions. तो हम देखते हैं कि जो शब्द है घमंड और
ईर्ष्या घमंड करना, यह कितनी बार इन वचनों में आता है? See, it is very important to remember that the root has to support us, that is God has to support us. तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि जो जड़ होती है, जो परमेश्वर है, वे हमें संभाल के रखे. It is not we who are supporting the root, but the root is supporting us. We are branches in that tree. और जो जड़ है वह हमें हमेशा संभाल के रखती है, और हम जड़ को नहीं संभालते. हम उन डालियों के समान हैं जो उस वृक्ष के एक हिस्सा हैं. When will the root support us? That is, when will God support us? और जो कब वह जो जड़ है वह हमें हमेशा संभालेगी? Only when we remain humble. और वह जड़ हमें तभी संभालेगी जब हम विनम्र रहेंगे. You can see in verse 19, you will say, then the branches were broken out so that I might be grafted in. और 19 वचन में कहते हैं, फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं. Verse 20 is a very important verse. Quite right. They were broken off for their unbelief, but you stand only by your faith. Do not be conceited, but fear. और जो वचन 20 है वह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. वह कहता है, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय कर. So we can see what are the two reasons why Israel was broken out. तो हम देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी दो वजह थी जिसके वजह से जो इजराइल देश है वह तोड़ा गया. One is because of unbelief, other is because of pride. पहला है उनके अविश्वास के कारण और दूसरा है उनके घमंड के कारण. Many times we don't understand how a serious sin unbelief is. और कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते कि जो हमारा अविश्वास है वह कितना गंभीर है. In John chapter 16, it is written, when the Holy Spirit comes, he will convict the world concerning sin. यूहन्ना के 16वें अध्याय में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगी तब वह इस धरती को अपने पापों के प्रति उनको चेतावनी देगी. And of sin because they do not believe in Jesus Christ. और पाप के कारण ही वह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते. So what is the reason why we sin? The main reason why we sin is because of unbelief. तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से हम पाप करते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे पहला कारण यह है कि हम अपने अविश्वास के कारण पाप करते हैं. We can say because of unbelief comes the sin of anger and sin of anxiety and fear and many other sins comes because of unbelief. और हम कह सकते हैं कि जो अविश्वास है उसके कारण बहुत सारे पाप, जैसे कि गुस्सा करना और चिंता करना, यह सारे पाप हमारे जीवन में आते हैं. Just imagine that I told my son or my daughter that I put 10,000 rupees in your account, and if my children are saying, no, I don't believe you, no, that will be a tremendous hurt to me as a father. और जरा आप सोच के देखिए कि अगर मैं मेरे बेटे या बेटी से बोलूं कि मैंने तुम्हारे खाते में 10,000 रुपए जमा किए हैं और वे मुझसे बोलें कि नहीं, मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये बात मेरे लिए कितनी चोट पहुंचाने वाली होगी. That is the same thing that we do when we don't really put faith in the promise of God. और यही काम हम करते हैं जब हम परमेश्वर के जो वायदे हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करते. That is why unbelief is a terrible sin before God. और इसीलिए जो अविश्वास है यह परमेश्वर के सामने एक बहुत ही गंभीर पाप है. And we can see in verse 20 that we can stand only by faith. और हम 20वें वचन में देखते हैं कि हम केवल विश्वास के कारण ही खड़े रह सकते हैं. So what is how we can stand in Christian life? Only as we put faith in God's word, faith in what God has said.
तो हम हमारे मसीही जीवन में कैसे खड़े रह सकते हैं? हम अपने विश्वास को जो परमेश्वर के वचन के ऊपर और जो परमेश्वर ने कहा है उसके ऊपर रखकर ही हम अपने मसीही जीवन में खड़े रह सकते हैं। And it's written, do not be conceited, but fear. और यहाँ पे लिखा है कि तुम अभिमानी ना हो परंतु भय कर। We can say that unbelief and pride are related, faith and humility are related. और हम कह सकते हैं कि जो अविश्वास है और घमंड है, ये दोनों आपस में बातें एक समान है, और जो विश्वास है और नम्रता है ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। When we are proud, that will result in unbelief. When we are humble, that will result in faith. और जब हम घमंडी हैं तब यह बात अविश्वास को पैदा करेगी, और जब हम नम्र हैं तब यह बात विश्वास को पैदा करेगी। You know, pride can come so easily to us. That is why we have to live in fear all the time. और जो घमंड है वह हमारे जीवन में बहुत जल्दी आता है, इसीलिए हम अविश्वास करते हैं। You know, that is why we have to live in fear all the time. Fear of God. इसीलिए हमेशा हमें परमेश्वर के भय में जीना चाहिए। You can see in verse 21, if God did not spare the natural branches, neither will he spare you. हम 21वें वचन में देख सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। Yeah, we know how God what is the reason why that natural branches were cut off. That is because of their pride and because of their unbelief. तो हम जानते हैं कि ये जो डालियां थी जो स्वाभाविक थी वे क्यों काट दी गई, क्योंकि वह उनके because of their pride. Yeah, because of their pride and unbelief. वे उनके घमंड और उनके अविश्वास के कारण काट दी गई। We know that when Jesus came, the Jews said, "We are the children of Abraham. We are not in slavery to anybody." They were very arrogant people. और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब यहूदी लोगों ने कहा कि हम तो अब्राहम के वंशज हैं, और वे लोग बहुत घमंडी लोग थे। And because of that, even when the second person of Trinity came, their eyes were blinded. और इस कारण जब त्रिएक परमेश्वर के जो दूसरा रूप है वह भी उनके सामने जब आ गया, तब भी वे उनकी आंखें अंधी रह गई। That is why we have to live in fear. The same thing can happen to us. और इसी कारण हमें भय में जीना चाहिए ताकि यह बात हमारे साथ ना हो। We can see here in verse 22, behold the kindness and severity of God. To those who fell, severity, but to you God's kindness. If you continue in his kindness, otherwise you will also be cut off. और वचन 22 कहता है, इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। Yes, these are the two things we have to always see: God's kindness and God's severity. और यह दो बातें हैं जो हमेशा हमें देखनी चाहिए, वह है परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की कड़ाई। It is possible we can look at God's kindness only, then we'll take sin lightly. और ऐसा हो सकता है कि हम केवल परमेश्वर का जो दया है, कृपा है, उसी को देखते रहें, परंतु ऐसा करने पर हम परमेश्वर को हल्के से लेंगे। Sin, we'll take sin lightly. तो ऐसा करने से हम पाप को हल्के में लेंगे। But if we look only at the severity of God, that will lead us to condemnation and discouragement. परंतु अगर हम हमेशा परमेश्वर का जो कड़ाई है उसको ही देखते रहेंगे तो यह बात हम लोगों को अपने आप पर दोष लगाना और ऐसे ही दोष लगाने वाले जीवन की ओर लेकर जाएगी। So we have to look at both the kindness of God and the severity of God at the same time. तो हम लोगों को परमेश्वर की जो दया है और परमेश्वर का जो कड़ाई है उन दोनों को एक साथ देखना है। And it's written, those who fell, on them there was severity of God, but on us there is God's kindness.
यहाँ पर लिखा है कि जो लोग गिर गए उन पर तो परमेश्वर की कड़ाई है, परंतु हम पर परमेश्वर की कृपा है। But it's written, if you continue in his kindness, otherwise we'll also be cut off. और कृपा तब तक है यदि तू उसमें बना रहे, परंतु अगर ऐसा ना हो तो हम भी काट डाले जाएंगे। So it's so important to remain in God's kindness. तो यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की जो दया है उसमें हमेशा बने रहें। And how we can remain in his kindness? Only when we remain in humility before God. तो हम परमेश्वर की दया में कैसे बने रह सकते हैं? हम वैसे तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने जीवन में नम्र रहें। Yeah, that is something which is so important in each of our life, to always put our face on the dust and say we are nobodies. और इसीलिए यह बात हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है कि हमेशा हम अपना मुख धूल में रखें और हमेशा यह माने कि हम तो कुछ भी नहीं। We can see in verse 23, and they also, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again. और 23वें वचन में हम देखते हैं, और वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। Verse 24, if you are cut off from what is by nature a wild olive tree and were grafted contrary to the nature into a cultivated olive tree, how much more shall these who are natural branches be grafted into their own olive tree? और 24वां वचन कहता है, क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे। So we can see here the tremendous mercy of God, that God is interested in always putting us back into his kingdom. तो यहाँ पर हम परमेश्वर की जो असीम कृपा है, दया है, उसको देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा इस बात में रुचि रखता है कि वे हर एक को अपने राज्य में लेकर आए। His desire is that we should not remain in unbelief. His desire is that we should not remain in pride, but that we will be people of faith and humility all the time. और उसकी यही इच्छा है कि हम कभी भी अपने अविश्वास में न जीते रहें और अपने घमंड में न जीते रहें, परंतु हमेशा हम वापस परमेश्वर की ओर विश्वास करते नम्रता से जीवन जिएं। You can see in all these verses the heart of God. The heart of God is always to restore us. और हम इन सभी वचनों में परमेश्वर के हृदय को देखते हैं, और परमेश्वर का हृदय हमेशा यह है कि हमें हमेशा वापस अपनी जगह पर लेकर आए। His desire is to really save us completely from our sin, and that we will be restored from all backsliding and all pride, and his desire is that we remain humble all the time. तो परमेश्वर का जो इच्छा है वह हमेशा यह है कि हमेशा हम उसमें बने रहें और हम नम्रता से जिए और अविश्वास ना करें। We can say in verse 25, I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, lest you be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of Gentile has come in. तो वचन 25 कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। We can see again that emphasis on pride. We should not be wise in our own estimation. तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर घमंड के विषय में कहा गया है कि हम अपनी ही समझ में अपने आप को बुद्धिमान ना समझें। It's written here that when we are wise in our own estimation, what happens is there will be blindness in our Christian life. As we read in verse 8, that God himself has given them the eyes that see not and ears that hear not. और जब हम अपने आप को बुद्धिमान समझते रहेंगे तो हम अंधे के समान हो जाएंगे और हम
सही रीति से देख नहीं पाएंगे, जैसे कि वचन 8 में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वयं उनको एक अंधकार दिया, एक जिसमें कि उनकी आंखें होते हुए भी वे देख नहीं पाए और कान होते हुए भी सुन नहीं पाए। And verse 26 says, thus all Israel will be saved, just as is written, the deliverer will come from Zion, and he will remove ungodliness from Jacob. And this is my covenant with them when I take away their sins. और वचन 26-27 में लिखा है, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। You can see here that God is going to turn Israel back to him once again. और यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इज़राइल को खुद अपनी ओर फिर से मोड़ देंगे। As Jesus himself said, they will look to him that pierced him. That is, they pierced Jesus, and there is a day that they are going to look back to him. और जैसे यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि उन्होंने तो उसको सूली पर चढ़ा दिया, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब वे लोग खुद उसकी ओर मुड़ जाएंगे। That's why it's written, this is my covenant with them, that when I take away their sins. और यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि यही मेरी वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। That means that they are going to turn to Jesus Christ, and they are going to acknowledge him as the Lord and Savior. और इसका मतलब यह है कि वे लोग यीशु मसीह की ओर मुड़ जाएंगे और उसको अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में ग्रहण करेंगे। You can see in verse 28, from the standpoint of gospel, they are enemies for your sake. But from the standpoint of God's choice, they are beloved for the sake of the fathers. तो 28वें वचन में लिखा है, वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। For the gifts and the calling of God are irrevocable. क्योंकि परमेश्वर के जो दान है और उसकी जो बुलाहट है, वे उसको कोई भी नकार नहीं सकता। See, many times we can see there is this gospel that once saved, always saved. You know, many times they hold on to this verse that gifts and calling of God are irrevocable. तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एक कहावत है कि एक बार जिसने उद्धार पाया वह हमेशा के लिए उद्धार उसका हो गया, और दूसरी ओर कहा गया है कि परमेश्वर के जो दान है और उसकी जो बुलाहट है उसको कोई वापस नहीं ले सकता। But just in the earlier verses, he said that because of unbelief and because of pride, they were cut off. परंतु इसके पिछले वचनों में हमने देखा था कि उनके अविश्वास के कारण और उनके घमंडी होने के कारण उनको काटा गया। Yeah, God has given as a gift Jesus Christ to them, and the calling of God is always for them. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को उनको एक तोहफे के रूप में दिया था, और जो परमेश्वर की बुलाहट थी वह हमेशा के लिए उनके लिए थी। And Israel is a people who are set apart for God. और इज़राइल के जो लोग थे वे ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के लिए अलग से ठहराए गए थे। God has a purpose through that nation in the last days. और परमेश्वर का एक उद्देश्य है इस राज्य के लिए अंतिम दिनों में। And they are going to turn back to God in the last days. कि वे लोग फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे अंतिम दिनों में। And verse 30 we can see, just as you were once disobedient to God, but now have been shown mercy because of their disobedience. And verse 31, so these also now have been disobedient, in order that because of the mercy shown to you, they also may now be shown mercy. और 30 और 31वां वचन कहता है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है उससे उन पर भी दया हो। Verse 32, for God has shut up all in disobedience that he might show mercy to all. 32वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा न मानने के कारण बंद कर रखा ताकि वह सब पर दया कर सके। Yeah, we can see the heart of God there, that God wants to show mercy
and kindness to all of us. और यहाँ पर हम परमेश्वर का हृदय देखते हैं कि परमेश्वर दया और करुणा सब लोगों पर, हम लोगों पर बरसाना चाहते हैं. There's a time when we were disobedient. Because of His mercy, God has grafted us into the tree of God. एक समय था जब हम लोग भी अनाज्ञाकारी थे, परंतु उसकी दया के कारण हम फिर से उस जो वृक्ष है परमेश्वर का, उसमें साटे गए. God has broken off some of the branches which are Israel, but He is going to graft them again, and He's going to again show to that nation the mercy of God. परमेश्वर ने कुछ डालियों को जो कि इजराइल का देश है उसको काटा था, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर फिर से उन डालियों को उस वृक्ष से साट देंगे. Yeah, there we can see that heart of God, a heart which is full of mercy and full of kindness. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का हृदय, ऐसा हृदय जिसमें पूरी रूप से करुणा और दया भरी हुई है. That is what we have to always remember. God is rich in kindness, rich in mercy. और यही बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो परमेश्वर है वह करुणा में और दया में बहुत ही अमीर है. And that is the nature that God wants us to partake of also, to be people who are rich in mercy and kindness. और यह ऐसा स्वभाव है कि परमेश्वर हमारे अंदर भी देना चाहते हैं कि हम भी ऐसे लोग हों जो करुणा में और दया में हमेशा आगे हों. And we can see in verse 33 onwards, Paul is telling, he is concluding, remembering all these things that he has said, he is concluding like this. हम 33वें वचन में देखते हैं कि जो भी प्रेरित पौलुस ने अभी तक कहा था उन सारी चीजों का वह इसमें संक्षिप्त रूप से उसको बताते हैं. I want to read these verses in the Living Bible. मैं ये जो वचन है उसको लिविंग अनुवाद में पढ़ना चाहता हूँ. Oh, what a wonderful God we have. How great are His wisdom and knowledge and riches. आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके वचन कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं. And how impossible for us to understand His decisions and His methods. और brother, you are reading the verse 34 or verse 33 I'm reading in Living Bible. और ओके ब्रदर. और कितना जरूरी है कि हम उसके ज्ञान को और उसकी बुद्धि को समझ लें. Yeah, God's wisdom and God's understanding is like an ocean. परमेश्वर का जो समझ है और उसकी जो बुद्धि है वह एक सागर के समान है. Our understanding is what can be contained in one small cup. और जो हमारी समझ है वह इस समान है कि उसको एक छोटे कप में ही समेट के वह आ सकता है. How much of ocean can be contained in a small cup? और कितना एक सागर का कितना भाग एक कप में हम ले सकते हैं. Yeah, that is why we cannot understand so many things about God. और इसीलिए कितनी सारी बातें हैं जो हम परमेश्वर के विषय में समझ नहीं सकते. It's written that as heaven is above the earth, so are His thoughts above our thoughts, and His ways above our ways. और ऐसा लिखा है कि जैसे स्वर्ग जितना दूर है पृथ्वी से, उसी प्रकार से उसके जो विचार हैं वह हमारे विचारों से इतना दूर हैं. It is impossible for us to understand His decisions and His methods. और हमारे लिए ये बिल्कुल असंभव है कि हम समझ पाएं कि उसने जो निर्णय लिए हैं और उसके जो काम करने का तरीका है. And verse 34, for who among us can know the mind of the Lord? Who knows enough to be His counselor and guide? तो 34वां वचन कहता है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ. It's not possible for us to counsel God. He's such an amazing, wonderful God. और यह संभव नहीं है कि हम परमेश्वर को कुछ सिखाएं, क्योंकि वह तो एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है. He's a sovereign God. He does things according to His
liking and his desire. और वह एक भव्य परमेश्वर है और वह अपने ही समझ के अनुसार और अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं. We know in Daniel, Nebuchadnezzar is telling these words like this about God. Brother, can you repeat? The net was broken. In Daniel, the king Nebuchadnezzar is telling these words about the sovereignty of God. और दानियल की पुस्तक में जो राजा नबूकदनेस्सर है वह परमेश्वर की भव्यता के विषय में यह वचन कहता है. We know that Nebuchadnezzar has become like an animal because of he began to eat grass like an animal because of his pride. और हम जानते हैं कि जो नबूकदनेस्सर है वह एक जानवर के समान हो गया था और उसने घास खाना शुरू कर दिया था, एक जैसे एक जानवर खाता है अपने घमंड के वजह से. But when he humbled himself and raised his eyes towards heaven and he began to praise and honor God. और जब वह नम्र हुआ और उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई तब उसने परमेश्वर को आदर दिया और उसकी स्तुति की. And he says this, that all inhabitants of the earth are counted as nothing. और उसने यह बात बोली कि जो भी इस धरती के वास करने वाले लोग हैं वे कुछ भी नहीं हैं. And among the inhabitants of the earth, no one can ward off his hand or say to him, what have you done? और इस संसार के जो लोग हैं उनमें से कोई भी अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाकर यह नहीं कह सकता कि आपने ये क्या किया. Yeah, that is our God. He's rich in mercy, he's rich in wisdom and rich in knowledge and understanding. और यही हमारे परमेश्वर हैं जो अपनी बुद्धि में और अपने ज्ञान में वे अद्भुत हैं. And verse 35 says in Living Bible, who could ever offer to the Lord enough to induce him to act? और 35वां वचन कहता है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए. Yeah, we cannot bribe God in any way. और इसीलिए हम परमेश्वर को रिश्वत नहीं दे सकते. God is not indebted to any one of us. God is not in debt to any one of us. और परमेश्वर हम में से किसी का भी कर्जदार नहीं है. He does whatever he likes. और वे जो भी चाहें वे करते हैं. That is the sovereignty of God that we have to understand. और यही है परमेश्वर की भव्यता और इस बात को हमें समझना है. And the last verse is such an important verse, Romans 11 verse 36. और जो अंतिम वचन है 11वें रोमन्स के 11 के 36वां वचन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. Written from him are all things, through him are all things, and to him are all things. To him be glory forever and ever. Amen. ये वचन कहता है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे. आमीन. We have to remember that whatever we do, we have to do from him and through him and to him. तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो भी हम करें वे हमें उसी के द्वारा करना है, उसी के लिए करना है और उसी की ओर से करना है. Yeah, if we are sharing God's word, we have to do it from him, through him and to him. और अगर हम परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं तो हमें वे उसकी ओर से करना है, उसी के द्वारा करना है और उसके लिए ही करना है. If we sing songs wherever we are in the church or anywhere, we have to do it from him, through him and to him. और अगर हम कुछ गीत गा रहे हैं, हम कहीं पर भी हैं, तो यह भी हमें उसी की ओर से करना है, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ करना है. If we work in the kitchen or we are working in office or wherever, whatever we do, we have to do it from him, through him and to him. और या तो हम अपने किचन में काम कर रहे हैं या अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब हम लोगों को उसकी ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए करना है. Yeah, we read that in the last day, it's written in 1 Corinthians chapter
chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 is written that if any man builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw. Which verse? 1 Corinthians chapter 3 verse 12. पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि उस नेव को, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है. So when can we build with gold, silver, and precious stones? That is when we do everything from Him, through Him, and to Him. तो ऐसा कब होगा कि हम अपना यह सब काम सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर से कर पाएं? यह तभी होगा जब हम हर काम परमेश्वर की ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए करें. Because God is going to take everything through the fire. क्योंकि परमेश्वर हर एक काम को, हर एक चीज को एक आग में से लेकर जाएंगे. We have to remember that this is the way we can be part of Jerusalem. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह ही एक तरीका है कि हम यरूशलेम का एक हिस्सा बन सकते हैं. Jerusalem is the city of God. और यरूशलेम एक परमेश्वर का एक शहर है. But what is Babylon? Babylon is the opposite of verse 36. What is written here is Babylon. तो बबीलोन क्या है? वह जो भी वचन 36 में लिखा है उसका विपरीत है. From me, through me, and to me are all things. That is the spirit of Babylon. That is the spirit of Lucifer. तो जो बेबीलोन है और जो लूसीफर है, उसकी जो आत्मा है वह यही है कि उसमें हमेशा वह कहता है कि हर चीज मेरी ओर से, मेरे ही द्वारा और मेरे ही लिए है. So let us be people who are part of Jerusalem, God's city, where we do everything from Him, through Him, and to Him. और आइए हम सभी उस यरूशलेम शहर का हिस्सा हो जाएं, परमेश्वर के शहर का, जिसमें हम हर काम उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए करें. So may God help us. और परमेश्वर हमें मदद करे. Truly blessed to be part of CFC. I believe CFC is one of the few churches that preach such a high standard of Word of God. और भाइयों और बहनों, हम लोगों के लिए ये बहुत ही आशीष का कारण है कि हम इस CFC कलीसिया के भाग हैं, और वह यही एक कलीसिया है जिसमें, बहुत ही कम कलीसियाओं में से एक कलीसिया है जिसमें परमेश्वर का वचन इतनी अच्छी रीति से समझाया जाता है. But we see a clear warning from the portion that we have heard today. और हम लोगों ने एक बहुत ही साफ चेतावनी सुनी उन वचनों में से जो हमने आज पढ़े. Because so we are living in a society. One side we see unbelievers who are continue to live in idol worship. और हम ऐसी समाज में रह रहे हैं जहां पर हम एक और लोगों को देखते हैं जो मूर्ति पूजा की ओर लगे हुए हैं. The other side we also see backslidden Christians. और दूसरी तरफ हम देखते हैं वह मसीही लोग जो पीछे हट गए हैं. So let us not despise either of them just because we are in one of the high standard churches. और हम इनमें से किन्हीं भी तरीके के लोगों को नीचा ना देखें, क्योंकि इस कारण से कि हम अच्छे कलीसिया में हम हिस्सा हैं. Because whatever we are today, it's because of God's grace. The moment pride enters, grace will be removed, and if God's grace is not there upon, we will be cut off from the tree. और जो भी हम आज हैं वह परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, और अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से चला गया तो हम पूरी तरह से नीचे गिर जाएंगे. Just want to share that here it speaks about the tree, and about verse 16 it says if the root is holy then the branches are too. तो मैं उस वृक्ष के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि रोमियो के 11 के 16वें वचन में लिखा है कि अगर जो जड़ है वह पवित्र है तो उसकी जो डालियां हैं वे भी सच्ची ठहरेंगी.
Now the root is I believe speaking about Abraham. तो जो जड़ है वह मैं मानता हूँ कि वो अब्राहम के विषय में बात की गई है। Here was a man who had faith in God and God considered him righteous. और यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जो परमेश्वर पे विश्वास रखता था और परमेश्वर ने उसको धार्मिक ठहराया। And God said, I will bless your descendants. Many nations will be blessed through you. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे वंशज को आशीष दूंगा और बहुत से राज्य तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। So the descendants of Abraham were considered as people set apart for God. तो परमेश्वर के जो वंशज थे वे ऐसे लोग माने जाते थे जो परमेश्वर के लिए अलग ठहराए गए हैं। So this was the tree and this was the root, the Abraham. और यही वह जड़ है और यही वह जो वृक्ष है जिसके बारे में बताया गया है। But we find that his descendants, they did not continue in God's way. They stumbled over the stumbling stone. They could not, when Christ was revealed, they could not accept Christ. और जो इस वृक्ष की जो डालियां थी वे उसमें बनी नहीं रह पाई और जो परमेश्वर के जो लोग थे वे उसमें ना बने रह पाए और जब यीशु मसीह उनके सामने आया तो वे उनको नहीं पहचान पाए। They continued to think that it was due to works that they will be acceptable to God. और वे हमेशा ऐसा सोचते रहे कि वे अपने कामों के कारण ही परमेश्वर को भा सकते हैं। They did not see that the new way which God said is by righteousness by faith. और वह उस नया जो रास्ता परमेश्वर ने बताया था कि धार्मिकता और विश्वास के द्वारा वे अपनाए जाएंगे वे उसको नहीं समझ पाए। So these branches were taken off because they were rejected because they did not accept by faith. और इसीलिए ये जो डालियां थी यह काट दी गई क्योंकि वे उसमें बनी नहीं रह पाई और वे विश्वास में नहीं रह पाई। But the same message preached to the Gentiles accepted it. परंतु जब यही संदेश अन्य जातियों को सुनाया गया तब उन्होंने इस संदेश पर विश्वास किया। The Gentiles who were ungodly and from a wild olive tree, they were grafted in because of their faith. They were grafted into this tree. और जो अन्य जाति के लोग जो जंगलों में रहते थे और जो अधर्मी थे तब वे इस पेड़ से जुड़ गए। They became the descendants of Abraham. और इसीलिए वे अब्राहम के वंशज बन गए। The spiritual descendants of Abraham they became. और वह अब्राहम के आत्मिक रीति से वंशज ठहरे। That is, brothers and sisters, we are the spiritual descendants of Abraham. और भाइयों और बहनों हम लोग अब्राहम के आत्मिक वंशज हैं। And here the Apostle Paul says we should not be proud like the Jews, but the Jews are proud, as we heard from Brother Sam, and we should not be proud and arrogant. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमें घमंडी नहीं होना चाहिए जैसे कि यहूदी लोग थे और जैसे भाई सैम भी बता रहे थे कि यहूदी लोग घमंडी और कड़क थे। So we are being held by this tree and by this root which God planned through Abraham. और हम लोग इस वृक्ष का और हम इस जड़ से जुड़े हुए हैं जो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने खड़ा किया। So what about the Jews? The Bible says the Jews, the gifts and calling of God are irrevocable. That means what God has called, what God has planned, that will not change. और यहूदियों के विषय में क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो दान है और उसकी जो बुलाहट है उसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसीलिए जो परमेश्वर की योजना उनके लिए है उसको कोई नहीं बदल सकता। A partial hardening of the Israel has happened until the fullness of the Gentiles will be fulfilled. That is in verse 25. और वचन 25 में देखते हैं कि
जो यहूदी लोग हैं उनके हृदय का कड़क किया जाना यह कुछ समय के लिए है, जब तक कि जो अन्य जाति के लोग हैं वे परमेश्वर में न आ जाएं। We can say that the 1948, when the Israel was formed back, that the time of Gentiles has come. तो हम कह सकते हैं 1948 में जब इजराइल को फिर से समेटा गया था, तब जो अन्य जातियां हैं उनका समय आया था। Yeah, that's what it's, another word says. That Jerusalem will be trampled upon till the time of the Gentiles will come. That is, so now Israel is back. So I believe that the time of the Gentiles has come, 1948 onwards. तो जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इजराइल को समेटे जाने के बाद अन्य जातियों का समय शुरू होगा, तो 1948 के बाद से मैं मानता हूं कि अन्य जातियों का समय शुरू हो गया। When the fullness of the Gentiles will come, then all Israel will be saved. और जब वह अन्य जातियों का समय पूर्ण रीति से पूरा हो जाएगा, तब जो इजरायली हैं उनका भी उद्धार होगा। So the word of God says that all Israel will be saved. और परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरा इजराइल उद्धार पाएगा। And even right now in Israel, there are people, Jews, who are coming to Christ. और आज के समय में भी इजराइल के देश में यहूदी लोग भी हैं जो मसीह में वापस आ रहे हैं। So God has shut up everybody in disobedience so that He can show mercy to all. तो परमेश्वर ने सबको अधार्मिकता के God has shut up everybody in disobedience. I mean the Jews as well as if we disobey, then God what it says is 32. For God has shut up all in disobedience so that He can show mercy to all. That means He wants to show mercy. He has shown mercy to us. Now He will show mercy to the Jews also. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सबको अनाज्ञाकारिता की ओर छोड़ दिया ताकि वह अपनी दया दिखा पाए। Can you repeat the later part, brother? Yeah, God has shown us the mercy. Now He will be showing the mercy to Israel, the Jews also. तो परमेश्वर ने हमें तो अभी दया दिखाई, परंतु एक समय ऐसा भी होगा जब परमेश्वर इजराइल के देश को भी अपनी करुणा दिखाएंगे। It should be a joy for all Gentiles like us to see the Israelis coming back to God. तो यह हम सभी लोगों के लिए एक आनंद की बात होनी चाहिए, हम लोग जो अन्य जाति के हैं, जब हम लोग इजराइल को वापस परमेश्वर की ओर मुड़ता देखें। The physical descendants of Abraham, for them, it will be easier to come back to God when they have faith, and it will be such a glorious thing. और जो वास्तविक रूप में अब्राहम के वंशज हैं अपने शारीरिक रूप से, उनके लिए कितना आसान होगा विश्वास के द्वारा जब वे परमेश्वर की ओर आएंगे, और ये कितना अद्भुत बात होगी। So here it says about what I mean the nature of God we can never understand. His mercy is too great. और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो परमेश्वर का जो स्वभाव है वह हम कभी नहीं समझ सकते, और उसकी जो दया है वह बहुत ही महान है। He is God. We can never even think of how His ways are. और वे परमेश्वर हैं, और हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उनके जो तरीके हैं वे कैसे हैं। None of us can give anything to God so that God can give us something. और हम में से कोई भी ऐसा कुछ भी परमेश्वर को नहीं दे सकता जो कि परमेश्वर हमें वापस ना दे सके। None of us can say, I have made such great sacrifice for God. Now He has to give me something. और हम में से कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने परमेश्वर के लिए इतने बड़े बड़े त्याग किए हैं कि अब परमेश्वर को भी मेरे लिए कुछ देना पड़ेगा। That can never be true. और यह बात कभी भी सच नहीं हो सकती। It is only God who gives it us. और यह केवल परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ देते हैं, beyond what we deserve. और उससे भी कहीं बढ़कर जो हम पाने के योग्य हैं।
He has given us mercy beyond what we deserve. और परमेश्वर ने हमें दया दी है उससे भी बढ़कर जितने हम योग्य हैं. How many of us can say amen to that? और हम में से कितने लोग इस बात के लिए आमीन बोल सकते हैं? From our heart, can we say amen to that? हम अपने हृदय से क्या इस बात के लिए आमीन बोल सकते हैं? And then it says, from him and through him and to him are all things. और फिर कहा गया है कि उसी के ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है. So that is the flow. Everything we have comes from him and through him, through his ability and back towards him. That is the way our life should be. Everything that we do should come from him, and through him we should do something and the glory should go back to him. तो यही हमारे जीवन में होना चाहिए कि जो भी हमें मिले वो हमें उसी की ओर से मिले और उसी के द्वारा मिले और फिर हम उन बातों को उसी के लिए उपयोग करें और इन सब बातों से परमेश्वर को ही महिमा मिले. So that is our fulfillment and that is the one which is acceptable to God. और यही हमारे लिए एक पूर्ण करने वाली बात है और यही बात परमेश्वर के लिए अपनाने वाली बात भी है. I want this in my own life. I want to this to be true in my own life. और मैं चाहता हूँ कि यह बात मेरे जीवन में सच ठहरे. I've not understood much about Israel and about many of these things which I mentioned here. Some of the things which I've said may also not have been accurate, but yeah, so this is what I understand. और जो भी मैंने मेरी समझ से अभी इजराइल राज्य के बारे में बोला तो ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ बातें सही ना हो, परंतु यह जो मुझे समझ है वह मैंने बोला. Amen. मैं परमेश्वर को स्तुति देना चाहती हूँ जो मैंने आज हमारे अध्ययन के बारे में पढ़ा. तो रोमियो 11 अध्याय पढ़ा तो मुझे इतनी खुशी हुई ये जब मैं पढ़ रही थी कि जो परमेश्वर हैं उनका दिल कितना विशाल है हमारे प्रति, कि वो हमारे लिए कितना भला चाहते हैं. ये जब मैंने ये जो वचन है जो 11वें अध्याय में जहाँ बताया गया है 11 के 32 में बताया है कि क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा ताकि वह सब पर दया करे. तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर का जो ज्ञान और जो बुद्धि और वो हमारी समझ से कितनी परे है कि वो ऐसे जो योजनाएं हैं वो उन्होंने बनाए हैं, कितना सुंदर है. और जैसे हमने आज सुना 20वें जो 11वें अध्याय का 20वां वचन जहाँ कहा गया है, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान. तो यहाँ ये कहा गया है कि अविश्वास के कारण जो इजरायली लोग थे वो तोड़े गए, लेकिन विश्वास के कारण हम बने रहे हैं. तो और ब्रदर ने हमें समझाया कि कैसे अभिमान और अविश्वास ये दोनों जो है इनमें एक रिश्ता है और जहाँ भी अविश्वास है वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे में घमंड है. तो मुझे जो हबक्कुक का पुस्तक है उसमें से ये वचन याद आया. हबक्कुक 2 का 4था वचन. हबक्कुक 2रा अध्याय और उसका 4था वचन. देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा. तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो फूला हुआ मन है
और जो विश्वास करता है, ये दोनों विपरीत है। अगर हमारा मन फूला हुआ है, अगर हम घमंडी है, तो हमारा मन सीधा नहीं है, ऐसे लिखा है इधर। लेकिन धर्मी व्यक्ति जो है वो अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो अगर हम में अविश्वास है तो इसका ये मतलब हुआ कि हम धर्मी नहीं है, और हमें इसीलिए हम विश्वास करना में कठिनाई है, क्योंकि हमें घमंड है। तो ये जो बात है ये आज मुझे स्पष्ट हुआ कि अविश्वास और जो घमंड है इसमें एक संबंध है, और इसीलिए परमेश्वर भी जो है अविश्वास को इतनी गंभीरता से देखते हैं। और एक और बात मेरे मन को भाया वो है कि परमेश्वर ने हमें जो है अपना जो ये जैसे 33वें वचन में लिखा है कि 11 के रोमियो 11 का 33, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। और प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, वो 34वें वचन में लिखा है। तो मेरे मन में आ रहा था कि हम समझ नहीं सकते, हम परमेश्वर का जो मन है उसे समझना बहुत ही हमारे लिए, हमारे जो समझ है उससे बहुत ही परे है। लेकिन उसके बारे में भी जो पहला कुरिन्ती और इसका 2 अध्याय में लिखा है एक बात जो मुझे बहुत ही अचंभित किया कि पहला कुरिन्ती 2 अध्याय और उसका लास्ट में जो वचन है 16वां वचन, उसमें ये कहा गया है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं, परंतु हम में मसीह का मन है। तो मुझे इतनी खुशी हुई जब ये मुझे समझ में आया कि यहाँ लिखा है कि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं। जैसे यहाँ भी हमने 33वें वचन में पढ़ा कि जो परमेश्वर का मन है वो कितना ही जो बुद्धिमान है, कितना उनका जो ज्ञान है हमारे समझने से परे है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंत में लिखा है कि परंतु हम में मसीह का मन है। तो परमेश्वर ने हमें अपना मन दिया है। अभी हम जो विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के मन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं उनके वचन के द्वारा। और ये जब मैंने समझा तो मुझे इतनी खुशी और आनंद हुआ मेरे दिल में कि परमेश्वर का जो मन है उसको, ऐसा मन हमें भी परमेश्वर ने दिया है। हमें मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है। हम उनकी बातों को समझ सकते हैं आज, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इसीलिए हमें भी परमेश्वर ने अपने पुत्र का मन हमें दिया है। और इन सब जो धन और ये जो उनकी जो बुद्धि है, उनका ज्ञान है, इन सब पर हमें भी परमेश्वर ने हमारे साथ बांटा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। और उनका जो है मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस चीज में एक भागी बनाया है कि जो लोग नहीं समझ सकते, इसमें मुझे भाग दिया है। अपने यीशु मसीह, अपने पुत्र का मन मुझे दिया है। ये जब मैं सोचती हूँ मेरा मन जो है खुशी से भर जाता है।